Hello everyone, I Fezia Khidwai once again welcome you all to Balajee online classes. Today I am here to explain chapter number 8 Cell Structure and Functional Unit of Life of class 8th Science. So basically in this chapter we are going to discuss that cell जो होता है वो हमारा structural and functional unit होता है, ठीक है, लाइफ का, एंड ऑल्सो उसका शेप और स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें हमें मिलती है, ठीक है. This we are going to basically discuss in this chapter. Now, cell is the structural and functional unit of life, and it forms the lowest level of organisms called the cellular level. Then they are of various types and they cannot be seen by the naked eye. They can only be seen through microscope. ठीक है, ये microscope से ही सुने जा सकते हैं. Also, cells are first seen by Robert Hooke. रॉबर्ट हुकी ने सबसे पहले हमारे सेल्स को देखा था. और कैसे देखा था, क्या किया उसने जो कॉक होता है, कॉक की स्लाइसेस ली और उनको क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंडर प्लेस कर दिया. उसके बाद जब वहां से उसने देखा तो उसे क्या दिखा, उसे एक स्ट्रक्चर दिखा जो स्मॉल सा था, स्मॉल बॉक्सेस जैसा था, जैसे कि आपके हनी कॉम होता है. हनी कॉम क्या होता है, हनी कॉम ऐसा होता है जैसे आपने देखा नहीं होगा अक्सर घरों में आपकी जो मधुमक्खी होती है वो छत्ता टाइप का बना देती है, ठीक है, जिसमें वो बेसिकली हनी स्टोर करती है. तो दैट इज हनी कॉम. तो बेसिकली हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर उन्हें कुछ दिखा उस स्लाइसेस में, ठीक है, एंड दैट वाज द सेल. देन वी हैव द सेल थ्योरी. Cell theory was first put forward by two German scientists that were the Matthias Jakob Sheldon and Theodor Schwann in 1839. और जो मेन पॉइंट्स थे इन थ्योरी के अकॉर्डिंग, दैट वाज ऑल लिविंग थिंग्स whether plants or animals they are made up of cells. जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं वो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, they are all made up of cells and all cells are basically similar in their basic structures but उनके जो functions होते हैं that are different. Then new cells developed from the old ones. Also the function of the cell depends on the way the organisms work. ये बेसिकली आपकी सेल थ्योरी थी. Then we have the shape and the size of the cell. The cell have different shapes and sizes depending on the function that they perform. जो functions वो perform करते हैं उनके according उनका size और उनका shape जो होता है वो vary करता है. Cells of the muscles are long and thin. This is why because they have to contact and relax. जो muscles होती हैं cells की वो क्या होती है, long और thin होती हैं क्योंकि उन्हें contract भी करना होता है और उनको फिर relax भी करना होता है. The skin cells have a flat shape. Why? So that they can provide a protection, they can provide a covering to your skin. Then we have the egg of a bird as a single cell and the largest cell is an ostrich egg. The smallest cell is a type of bacteria that is called as mycoplasm. जो typical cell होता है that basically measures 0.02 mm in diameter. And then we have some cells like WBCs which do not have a fixed shape, जिनका कोई भी fixed shape नहीं होता है. Also we have amoeba जो एक irregular single celled organisms है जिसमें pseudopodia होता है और जो change करता रहता है अपना shape, right? Then we have the structure of the cell. सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल के स्ट्रक्चर में सेल के अंदर एक जेली जैसी चीज होती है, सब्सटेंस होता है जो फिल्ड अप होता है और इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो सेल का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली and even cell organelles are also present in the cytoplasm. Then the cell membrane and cell wall. The cytoplasm is surrounded by a thin membrane that is called as cell membrane or plasma membrane. जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, जो जेली जैसा सब्सटेंस होता है, उसके चारों ओर क्या होता है, एक बॉर्डर होता है, एक बाउंड्री होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑल्सो दिस सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस. पहला क्या होता है, ये हमारे सेल को सराउंडिंग से सेपरेट करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल को. देन सेल को एक प्रॉपर शेप देती है एंड ऑल्सो इट अलाउज वाटर एंड अदर नेसेसरी सब्सटेंस टू पास थ्रू इट. देन वी हैव द न्यूक्लियस. तो दूसरी चीज होती है वो होती है हमारी न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज बेसिकली फाउंड सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, एज अ स्क्वैमस और ओवल शेप्ड बॉडी. क्या होता है, बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड होता है और सेल के सेंटर में बीच में न्यूक्लियस जो होता है वो पाया जाता है. It is surrounded by a thin membrane which is called as nuclear membrane. Also nucleus is located at the center of the cell, ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल में होता है, स्पेशली एनिमल सेल्स में सेंटर में लोकेटेड होता है और इसके क्या होते हैं, 4 मेजर पार्ट्स होते हैं. पहला होता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन.
ये बेसिकली क्या करता है, ये पैसेज प्रोवाइड करता है सर्टेन मटेरियल्स को सो दैट दे कैन कम इन एंड दे कैन गो आउट ऑफ द न्यूक्लियस. देन वी हैव द न्यूक्लियोप्लाज्म. दिस बेसिकली एक डेंस फ्लूइड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जो हमारे न्यूक्लियस में फिल्ड होता है. देन वी हैव न्यूक्लियोलस. इट इज बेसिकली अ स्फेरिकल बॉडी which is located at the center of the nucleus and it contains RNA. RNA क्या होता है, हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है. Then we have the chromosomes. Chromosomes basically धागे की तरह, थ्रेड की तरह पतले स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इनमें क्या होता है, हमारा डीएनए होता है. डीएनए बेसिकली क्या स्टोर करता है, डीएनए क्या स्टैंड करता है, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और जिनमें क्या होते हैं आपके बेसिक हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीन्स. Then the nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cell of the multinuclear organisms. There is no nuclear membrane. क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल के जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, जस्ट लाइक द एनिमल सेल्स. ठीक है, और इसमें क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. ऑल्सो द सेल हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक. वो सेल जिनकी क्या होती है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड जिनका न्यूक्लियस होता है, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक. ठीक है, और वो हमारे सेल्स दे हैव न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, उन्हें हम बेसिकली कहते हैं प्रोकैरियोटिक. ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर दी यूकैरियोटिक. ठीक है, सारे जो होते हैं बेसिकली ऑर्गेनिजम्स आपके यूकैरियोटिक ही होते हैं एक्सेप्ट दी बैक्टीरिया एंड दी ब्लू ग्रीन एल्गे. देन वी हैव दी सेल ऑर्गेनेल्स. बेसिकली इसमें फर्स्ट जो है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड. देन इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ये दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है. Then second one is the endoplasmic reticulum. ठीक है, this basically helps in the transportation of substance within the cell. सेल में जो substance का transportation होता है उसमें basically ये चीज आपकी help करती है. Then we have the ribosomes. They are basically responsible for protein synthesis and they are present in both plant and the animal cell. Then we have the Golgi bodies. They are basically they synthesizes, they store and they secrete many substance. ठीक है, ये सिंथेसाइज भी करते हैं, ये कुछ चीजें स्टोर भी करते हैं और कुछ चीजों को पास आउट भी करते हैं. देन वी हैव द लाइसोसोम्स. दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड दे हेल्प इन सेलुलर डाइजेशन. ठीक है, ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, ये हमारे एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं एंड ये हेल्प करते हैं इन सेलुलर डाइजेशन. देन वी हैव द सेंट्रोसोम्स. They are basically present only in animal cell and they are responsible for cell division. We have vacuoles. आपके वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स बेसिकली क्लियर स्पेसेस होते हैं विच आर सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन. ठीक है, पतली मेम्ब्रेन से सराउंडेड होने वाले क्या होते हैं, क्लियर स्पेसेस होते हैं और बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड. ठीक, ये फूड स्टोर करते हैं एंड दे आर प्रोमिनेंट एंड लार्ज इन प्लांट सेल व्हाइल दे आर नॉट प्रोमिनेंट एंड दे आर स्मॉल इन द एनिमल सेल. देन वी हैव द प्लास्टिड. हमारी जो होती है प्लास्टिड्स क्या होती है, दे बेसिकली अकर इन दी प्लांट सेल. जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं वो बेसिकली हमारे प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं और ये 3 टाइप्स के होते हैं. जो हमारा पहला टाइप होता है वो हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट, जो हमारे क्लोरो ग्रीन होते हैं. हमने देखा है ना, पत्तियां जो होती हैं वो प्लांट्स की हरी होती हैं. हरी क्यों होती है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो ये क्लोरोफिल जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट ही होता है. दे कंटेन, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है इसी में हमारा क्लोरोफिल होता है, हमारा ग्रीन सब्सटेंस होता है जो हमारी लीव्स को ग्रीन कलर देता है एंड दे आल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. देन वी हैव द क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे कलर्ड सब्सटेंस होते हैं एंड दे प्रोवाइड कलर टू बेसिकली द फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स. देन वी हैव द ल्यूकोप्लास्ट. ये बेसिकली आपके व्हाइट कलर के होते हैं, कलरलेस होते हैं. आप इन्हें व्हाइट कह सकते हो, ट्रांसपेरेंट कह सकते हो. ठीक है, एंड दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड और ये फूड की स्टोरेज में हेल्प करते हैं. देन वी हैव अ कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. एक कंपैरिजन दिया हुआ है प्लांट और एनिमल सेल में. जो हमारा प्लांट सेल होता है वो क्या होता है, वो इट हैज अ रिजिड नॉन लिविंग सेल वॉल, व्हाइल एनिमल सेल में सेल वॉल हमारी एब्सेंट होती है. यूजुअली क्या होता है, प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है. वैक्यूल हमने अभी पढ़ा था, क्लियर स्पेसेस जो होते हैं दैट आर सराउंडेड बाय द थिन मेम्ब्रेन. ठीक है, एंड दीज वैक्यूल्स आर ईदर एब्सेंट और स्मॉल इन साइज इन द प्लांट सेल.
देन प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट सेल में और एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में. सेंट्रोसोम्स हमारे एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में बट प्रेजेंट होते हैं हमारे एनिमल सेल में. सेंट्रोसोम्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेल डिविजन. देन फूड स्टोर्ड एज स्टार्च, हमारे प्लांट सेल में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, व्हाइल एनिमल सेल फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है हमारे एनिमल सेल में. So class, your chapter ends here. Now please go through this chapter, read this chapter properly, mark all your queries and that we can discuss in our live sessions. Alright. Also, you have to download the PDFs of this chapter. You can get those PDFs on School Mitra app. So please download those PDFs and complete your work. Thank you so much. Have a good day. Stay safe and stay healthy.